I want to say thank you so much for joining our official YouTube channel, and I believe as you listen to these messages every week that we upload, it would make you strong in the Lord and in His mighty power and direct you towards Jesus Christ. Would you do me one more favor? As you have been blessed, share these spiritual resources to build somebody's faith, and that is the only way that we can serve Him. We can be His evangelist. We can be His voice in the midst of this pandemic. One of the messages that I preached to the pastors and leaders in the beginning of this year, during our 7 days of fasting and prayer about prayer, I found out to be a great blessing to the time and the season that we are in this month, where we see challenges around, hospital beds are full, people running here and there to get the oxygen cylinder, crematoria, they are full, the medical personnel, doctors and health workers, stressed, frustrated, working 24/7, they have no answer and the system has failed. What do we do? I want you to listen to this message. What do we do at the situation? When things around falling apart, we cannot blame anybody. Only person that who can bring change to this chaos and confused society, it is Jesus. Let's pray. As we have no answer, but prayer is going to make the unbearable bearable in this time and the season that we live. Let's go live to a message preached to the pastors and leaders during the fasting and prayer. Listen to this, and I'm sure God will bless you. God will make you pray more and lead you to His feet. The most sacred place on this earth is the feet of the Lord Jesus Christ. Let's just go live and listen to this message. This week is a week of prayer around the world for the Assemblies of God churches. और ये सप्ताह पूरे संसार भर में हमारे असेंबली ऑफ गॉड में प्रार्थना का एक विषय है. We just want to tell the Lord, Lord, you are number one in our life. For the Bible starts with this word, in the beginning, God. और हम परमेश्वर से इस बात को कहने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे साल की शुरुआत में प्रभु हम आपको अपने सामने रखना चाहते, क्योंकि बाइबल की शुरुआत में उत्पत्ति में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने. We need God more than ever before in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर की जरूरत हमें पहले से भी ज्यादा चाहिए. What a great way to begin the year at the feet of Jesus, seeking His face in fasting and praying. और कितनी अद्भुत और अनोखी बात है कि एक साल की शुरुआत हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ हम शुरू कर पाए. We all know that we need to pray. हम सब जानते कि हमें प्रार्थना करना चाहिए. If at all we need to learn how to pray, there is no greatest master in prayer other than our Lord Jesus Christ. यदि प्रार्थना के बारे में हमें सीखना है तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके द्वारा हम सीख सके. He would get up early in the morning and he would go to a solitary place to pray. और प्रभु यीशु मसीह भोर को उठ के वो जाके एकांत के जगह पे प्रार्थना करते थे. Before he could pick up the 12 apostles, the Bible says he prayed the whole night. The next day morning he called them to follow them. प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनने से पहले पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद उन्होंने चेलों का चुनाव किया. And Jesus in his lifetime, the Bible says, often he withdrew from the crowd and he prayed. और बाइबल में हम देखते इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह कई बार अपनी सेवकाई के दौरान अपने आप को लोगों से भीड़ से अलग करके उन्होंने प्रार्थना में समय को बिताया. Once the disciples come to Jesus and started asking, Jesus, teach us how to pray. For the disciples of John the Baptist, they are fasting and they are praying. और चेलों ने एक समय ऐसा था जहाँ पे प्रभु यीशु के पास आकर उन्हें पूछने लगे कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाए, क्योंकि यूहन्ना के जो जितने चेले हैं वो प्रार्थना करते हैं. And to them Jesus told them this. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ऐसा कहा, As long as the bridegroom is there, you don't need to fast and you don't need to
pray. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ में, तुमको उपवास करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। But a time is coming, he will be taken away. लेकिन समय आने वाला है जब दूल्हा उठा लिया जाएगा, At that time, you would be fasting and praying. और वो समय रहेगा जब तुम उपवास के साथ प्रार्थना करोगे। It is to say, when Jesus' physical presence is taken away from the disciples, इसका मतलब चेलों के बीच में प्रभु की शारीरिक जो उपस्थिति थी वो उठा लिया जाने वाला था। to regain the presence back, they will have to fast and pray and seek God. अब फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को वापस अपने जीवन में पाने के लिए उनको उपवास के साथ प्रार्थना करना था। And look at the first book of the Bible, the book of Genesis. आज बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में जब हम देखें, And the Bible says the Lord, the Creator, would walk in the Garden of Eden in the cool of the day to talk to Adam and Eve. और बाइबल इस प्रकार से कहती कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सांझ के समय अदन के बगीचों में जाके आदम और हवा से बातें करते थे, संगति करते थे। Prayer is a time, it's a place where you hang out with God. It's a cool place. अब प्रार्थना एक ऐसा जो स्थान या प्रार्थना एक ऐसा समय है जहां पे मैं और आप परमेश्वर के साथ एक संगति कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। It's not a monologue. You just go and say anything and everything to God and finish it off with amen. It's a dialogue. You talk and God talks to you. It is a two-way communication. और प्रार्थना एक प्रकार की बातचीत है जहां पे एक व्यक्ति ही सामने से कहता नहीं, बात करता नहीं, लेकिन जहां पे दोनों तरफ से बातें जो आदान प्रदान की जाती हैं वही प्रार्थना है। What did Adam and Eve talk to the Lord? और आदम और हवा ने प्रभु से क्या बातें की? They did not have any stress. और उनके पास कोई तनाव की बातें नहीं थी, They did not have children to bother them. और उनके पास बच्चे भी नहीं थे कि बच्चे की जिम्मेदारी से परेशान रहे। They were living in a perfectly harmonious environment. They needed nothing. और आदम और No need was हवा there. शुरुआत में जब वो जीवन जी रहे थे, एक पूरी तरह से शांति का वातावरण या माहौल में जीवन जी रहे थे। So what they would have talked? तो उन्होंने क्या बातें की प्रभु से? So prayer in the purest form, in the original form, is not to talk to God about your problem, your needs. और प्रार्थना का यही सही अर्थ कहा जाए तो प्रार्थना वो नहीं जहां पे हम अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखें, It is just a communication. You talk to God. लेकिन ये परमेश्वर के साथ में बातचीत है, परमेश्वर के साथ संगति है। I would like to highlight one of the scriptures from the book of Psalm 141, the first two scriptures. और एक वचन को मैं आपकी ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ, भजन संहिता 141 उसका 1 और 2 जब हम पढ़े, Where the psalmist says, I call to you, O Lord, come quickly to me, hear me when I call to you. जहाँ पे भजनकार कहता है कि प्रभु यहोवा मैंने आपको पुकारा और आपने प्रभु फुर्ती करके, और जब मैं आपको पुकारूं तब आप मेरी ओर कान लगाइए। And the second scripture says, May my prayer be set before you like incense. May the lifting up my hands be like the evening sacrifice. और दूसरा वचन भजन संहिता 141 का इस प्रकार से कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्न बलि ठहरे। May my prayer be set before you like an incense. वो कहता है भजनकार कि प्रभु मेरी प्रार्थना आपके सम्मुख सुगंध धूप के समान होने पाए। We may not understand today when we read this line, prayer being compared with incense. और इस वचन को पढ़ने के द्वारा यदि हम नहीं समझ पाए हो जहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रार्थना एक सुगंध धूप के समान है। To better understand, we need to go back to the book of Exodus, where the Lord was giving instructions to Moses how he should make the tabernacle. और जब हम निर्गमन की किताब में चले जाते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को इस बात की निर्देशन दे रहा था कि किस प्रकार से मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की आराधना करे। You remember when God gave how the furnitures inside the tabernacle have to be and the big curtain would be there, and inside the holy of holies where nobody would be able to enter other than the priest once in a year.
और जहाँ पे परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा को बताया कि मिलाप वाले तंबू की किस प्रकार के संरचना होनी चाहिए, जहाँ पे किस प्रकार के सिंहासन होना चाहिए, और जहाँ पे एक बड़ी सी पर्दा लगा हुआ था, और पर्दे के पीछे वो अति जो पवित्र स्थान था जहाँ पे सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकते थे। And the Ark of the Covenant, the God box would be there. और उस मिलाप वाले तंबू के अंदर वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति रखी जाती थी। Just before that big massive curtain would be the altar of incense. और उस वाचा के संदूक के सामने एक बड़ी सी जो पर्दा हम कह सकते हैं रखी गई थी जहां पे धूप जलाया जाता था। And after that comes the altar for sacrifice. और उस पर्दे के सामने जब आते हैं तब बलिदान करने के लिए वहां पे वेदी बनाई गई थी। Where the public would come, especially during the Day of Atonement, tens and thousands of people would bring their sacrificial animals. और उस वेदी में एक ऐसा सामान्य जगह थी जहां पे लोग हजारों की तादाद में आके वो अपने पश्चाताप का बलिदान उस वेदी पे चढ़ाते थे। When the Bible says, "May my prayer be like an incense before you," जब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मेरी प्रार्थना उस सुगंध धूप के समान है, this refers to the Old Testament time when people come with their sacrificial animal to offer in the altar as a sacrifice. तो ये जो बातें पुराने नियम में जब हम देखें तो इस बात को बताती हैं कि जब वेदी में लोग आके बलिदान चढ़ाने की वस्तुओं को लेकर आते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, The priest would hold the animal. तब याजक उन सारे बलिदान के भेड़ों को अपने हाथों में लेते थे And he would slit the throat. और उनके गर्दन को काटते थे, And the blood would split everywhere. और उस भेड़ों की जो लहू है छिड़क जाती थी उसके चारों तरफ, And the animal would be sacrificed on the altar. और सारे जानवरों को उस वेदी पर बलि की जाती थी। It would not be a sweet place to stay. और वो ऐसा जगह नहीं था मन भावना जहाँ पे हमें अच्छा लगे रहना। We may think a holy place where priest would have a decent cloth and everything would become neat and clean. और जब हम पवित्र स्थान के बारे जब हम सोचे तो इस प्रकार से विचार आती हैं कि जहाँ पे याजक श्वेत वस्त्र पहन के शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहन के तैयार रहेंगे और सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। But let me give you a graphic picture about it. लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक तस्वीर को हम दिखाएं। When tens and thousands of animals are brought on the Day of Atonement, you just visualize before your eyes where they slit the throat of the animal. It can be an oxen or a ram or a sheep, and blood everywhere. The animal, beating their feet, screaming. It would be a horrific sight. जब हम इस बलिदान की बातों को हम करें तो आपको एक इस प्रकार से पिक्चर की कल्पना करने के लिए हम कहते हैं कि सोच लीजिए जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आके भेड़ बकरियों को बलि चढ़ाते थे। और उस भेड़ बकरियों को बलि चढ़ाने के समय सिर्फ भेड़ बकरी नहीं थे, उसमें बैल थे और दूसरे प्राणी थे जहाँ पे लेके आया जाता था, जहाँ पे याजक उनके गले को काट के उसके लहू को रक्त को वहाँ पे छिड़कते थे, जहाँ पे भेड़ बकरियों की चिल्लाने की आवाज, छटपटाने की आवाज और चारों तरफ लहूलुहान सी परिस्थिति। The stench of blood. और उस जगह पे लहू की जो बदबू आ रही थी। Everywhere it would be messy near the altar. और उस वेदी के सामने चारों तरफ सारी चीजें बिखरी हुई थी। It would be like a slaughterhouse. और वहाँ पे जहाँ पे कत्ल खाने के समान बन जाती थी परिस्थिति। But suddenly, लेकिन अचानक से the priest walks towards the altar of incense. तब याजक अचानक से उस वेदी पे सुगंध धूप लेके आ जाते थे। In the midst of a messy situation. और उस सारे गंदगियों के बीच में, दुर्गंधों के बीच में, Where you only smell the stench of blood nauseating, you feel like giving up and going away from that place. और जहाँ पे वेदी एक ऐसी स्थान बन जाती थी जहाँ पे
बलि चढ़ाने के द्वारा वहां पे सिर्फ लहू की ही बदबू आ जाती थी, जहां पे दम घुटने का जैसे मन करता था, लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते थे। The priest walks towards the altar of incense. लेकिन याजक उस बेदी पे सुगंध धूप लेके जाया करते थे। He just spreads that incense that is described in the book of Exodus how they should be made. और ये याजक उस आग में उस सुगंध धूप को छिड़कते थे, और धूप किस प्रकार से बनाया जाता है निर्गमन की किताब में उसके बारे में विवरण दी गई है। He walks in the midst of the people with this incense in his hand. और याजक उस धूपदानी को अपने हाथ में लेके लोगों के बीच में चलते थे। And those people who felt like walking away from that situation, और जो लोग उस बेदी की उस गंदगी और सारी चीजें तहस नहस थी, उन चीजों को देख के जो वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते थे, now they feel something better. अभी उस जगह पे उस धूप जलाने की वजह से वहां पे अच्छी खुशबू आ रही है। जो बाहर जाने के लिए तैयार थे लोग अभी उस जगह पे ठहर जाते हैं। A sweet aroma. चारों तरफ एक सुगंध धूप महकने लगती है। The more and more the priests start sprinkling the incense in the tray. और जितनी बार याजक उस जलती हुई आग के ऊपर उस धूप को जब छिड़कते थे, the lesser the feel the stench of the blood and the mess around them. तो उस बेदी के चारों तरफ जो भी बदबू और दुर्गंध आ रही थी, उसका दुर्गंध आना कम हो जाता था। That is what prayer does, my friends. और इसी प्रकार प्रार्थना भी काम करती है मेरे दोस्तों। Prayer makes to bear the unbearable bearable. अब प्रार्थना जिन चीजों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, प्रार्थना उन चीजों को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य देती है। Prayer may not solve all your problem. प्रार्थना आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता। I believe in miracle. I believe in healing, deliverance and God's divine intervention. मैं विश्वास करता हूँ चंगाई में, छुटकारे में और परमेश्वर की दैविक शक्तियों पर मैं विश्वास करता हूँ। But more than ever before, the more you pray, it changes you first. लेकिन पहले से बढ़कर जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करते हो, सबसे पहले प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। It changes your family situation. वो आपकी परिवार की जो परिस्थितियों को बदल देती है। When you walk into your working space, और जब आप अपने काम करने के स्थल पे जाते हो, the difficult situation, जो कठिन मुसीबतों से घिरे रहते हो, where you feel suffocated, जहाँ पे आप घुटन सा महसूस करते हो, when you walk with prayer this year 2021, लेकिन जब आप 2021 में उस स्थान में प्रार्थना के साथ जब जाओगे, in the midst of your messy situation, आपके जीवन की उस गंदगी भरी परिस्थितियों के बीच में it's still there, वो सारी चीजें तो रहेंगी बिखरा हुआ, but when you take this incense wherever you walk in, लेकिन जब आप प्रार्थना का उस सुगंध धूप को अपने साथ लेके जहां कहीं भी चलोगे, you will be able to survive. और आप उस परिस्थिति में आसानी से जीवन को जी पाओगे। The more you go away from prayer, और जितनी ज्यादा दूर प्रार्थना से आप चले जाते हो, the more it's going to smell, it is going to become difficult. तो उतनी ही ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा बदबू आपको परेशान करेंगी। In other words, the less you pray, the more things are going to smell in your life. इसका मतलब ये है कि जब आप कम प्रार्थना करते हो तो आपको ज्यादा उस दुर्गंध आपके कानों में आने लगेगी, नाकों में आने लगेगी। The moment you take prayer before God, लेकिन जिस वक्त आप प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हो, it sweetens the entire atmosphere. और वो प्रार्थना सुगंध धूप के समान उस परिस्थिति को बिल्कुल बदल देती है। That's what we read. There was a plague in the book of Numbers chapter 16. Aaron, the Bible says, he stood between the dead and the living with an incense. इसीलिए गिनती की किताब उसका 16 अध्याय में जहां पे देखते हैं, जहां पे मरी फैली हुई थी, उस वक्त हारून ने धूप लेके उस जगह पे खड़ा होता है। The sweet fragrance started to come out, और उस धूप से सुगंध खुशबू निकलने लगी, where people started dying and the sheer stench of death
everywhere, here comes Aaron with an incense. और जहां पे मरी फैली हुई थी, उस वक्त हारून ने अपने हाथ में इस सुगंध धूप को लिए हुए गया, जहां पे लोगों ने उस मृत्यु और महामारी के दुर्गंध के बीच में उन्होंने कुछ अच्छा उनके नाकों में आई सुगंध। You remember Apostle Paul? क्या आपको याद है प्रेरित पौलुस के बारे में? He asked the Lord in 2 Corinthians chapter 12 verses 8 and 9. 3 times he started pleading before the Lord, saying, Lord, take it away from my body the thorn that has been bothering me. और दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, जहां पे प्रेरित पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की परमेश्वर से और कहा कि प्रभु मेरे शरीर के अंदर जो कांटा चुभा है, प्रभु उसे आप निकाल दीजिए। What was the answer of the Lord? लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया? Paul, you keep praying. और प्रभु ने कहा कि पौलुस तू प्रार्थना करते रहे, I'm going to give my grace, more grace. कि मैं तुम्हें और ज्यादा अनुग्रह प्रदान करूं। I'm going to give you the strength to bear the unbearable. मैं तुम्हें ताकत दूंगा, जिन चीजों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो उन चीजों को तुम बर्दाश्त कर पाओगे। The thorn is going to be in your side. और जो कांटा है जो तुम्हारे शरीर पे तो रहेंगी ही, There are things going to prick your life. और जो कांटे तुम्हारे शरीर के अंदर चुभती तो रहेंगी ही। You keep praying, Paul, लेकिन तुम प्रार्थना करते रहो, so that you can withstand anything and everything. लेकिन तुम प्रार्थना करने के दौरान तुम हर एक परिस्थिति में तू स्थिर खड़े रह सको। Oh Lord, may my prayer be an incense before you, Lord. प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख सुगंध धूप होने पाए। We are not telling you that everything will become all right in the year 2021. इसका मतलब ये भी नहीं 2021 में सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ही सही होने वाली है। God will bless you, God will multiply you, everything will become all right. अब प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको No. प्रभु बढ़ाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। There are going to be tougher days. जीवन में कठिन समय भी आएंगे, Mess around you. और चारों तरफ सारी चीजें फैली रहेंगी, Difficult situation. कठिन परिस्थिति। But the more you start praying, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, God helps you to stand firm, not to give up, and feel the sweet presence of God. लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, तब परमेश्वर उस प्रार्थना के दौरान आपके पांव को मजबूत कर देगा, ताकि आप हार नहीं मानोगे, लेकिन आप स्थिर खड़े रहोगे और उस सुगंध धूप का वो सुगंध आपके नाकों में आप महसूस कर पाओगे। That's what Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी के बगीचे पे प्रार्थना जब कर रहे थे, His prayer was, Lord, if it is your will, उनकी प्रार्थना ये थी, प्रभु यदि ये आपकी इच्छा है, I'm ready to take up this cup. If not, let your will be done. वो क्या था कि प्रभु यदि आपकी इच्छा कि ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन प्रभु मेरी नहीं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। And an angel descended from heaven and strengthened our Lord Jesus. और स्वर्ग से सरदूत उतरकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सामर्थ दी। We pray that as we dedicate, set apart this week as a week of prayer, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, ये नए साल के 7 दिन एक प्रार्थना का दिन करके समर्पित जब हम कर रहे हैं अपने आप को, let God teach you how to pray. होने दे प्रभु हमें सिखाने पाए कैसे प्रार्थना करना है, That we will not give up. ताकि हम हार ना माने, We will not walk away from the situation. हम परिस्थिति से भाग ना जाए, We'll stay there. हम उसी परिस्थिति में खड़े रह पाए, And our prayer will change the entire atmosphere. Where there is mess, where there is difficult situation, where people feel like giving up because of your prayer, let things be changed. होने दीजिए उस कठिन परिस्थितियों के बीच में भी जब हम रहे, तो होने दे ये हमारी प्रार्थना उस जगह पे जो बिखरी हुई है, जहाँ पे बदबू आ रही है, हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन सारे परिस्थितियों में एक अलग प्रकार के वातावरण को बना पाए, ताकि हम उसी जगह पे स्थिर रह पाए। Once again, फिर एक बार let this be our prayer. ये हमारी प्रार्थना होना है, Lord, may my prayer be set before you like incense. हमारी प्रार्थना ये रहनी है कि हम कहे प्रभु से कि प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख सुगम
धूप के समान होने पाए, that will change the entire atmosphere, the very place I am. ताकि वो धूप की जो सुगंध है, जिस परिस्थिति में मैं रहता हूँ, वहाँ की पूरे वातावरण को बदल डाले। Pray when you feel like praying. प्रार्थना कीजिए जब आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना करना Pray चाहिए। when you don't feel like praying. आप तब भी प्रार्थना कीजिए जब आपको प्रार्थना करने का मन ही नहीं है। Pray until you feel like praying. और जब तक आपको प्रार्थना करने का मन न करे, तब तक आप प्रार्थना में लगे रहे।